Okay, so today I have taken out the GT essay book, GT essays from the past exams. Okay, and I'll be discussing one essay of each type that is seen in the IELTS. One essay of each type. So I'm starting from the last essay that is there in my GT essay book, and the topic is some people think. Okay. So the first essay is some people think that helping their children with homework is good. Some parents think. Others think children should do their homework on their own. Discuss both views and give your opinion. तो कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को हेल्प करना होमवर्क के साथ अच्छी बात है और बाकी कहते हैं कि बच्चों को होमवर्क अपने आप करना चाहिए. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. ये डिस्कस ऐसे आ गया. ओके, so the first essay we are going to do today is discuss essay. Now how to handle a discuss essay. Discuss essay ka, believe me, if you follow this format, students have, you know, जिन्होंने पहले पेपर दिया writing में 5 हैं, they have gone to 6.5 just by following the simple format of the discuss essay. And if you follow that, and if you are a good student already at 6.5, definitely it will be 7.5. Okay, format is very good. In fact, this one essay type format I have been following for the past many years. Baki essays types ke humne 1-2 saal pehle banaye hain format. They are also very good. But this is very, very good. And if you just it's very easy also. Okay, so discuss essay is one essay जिसमें कुछ लोग ये कहते हैं, बाकी लोग वो कहते हैं. दोनों डिस्कस करो और अपना व्यू दो. Okay, first thing that I would like to make clear, please listen attentively, because the same thing you are going to ask again if you don't listen now. Okay, you may make a 4-para essay, you may make a 5-para essay. It does not matter. It does not have any effect on your band score. Is that clear? What I mean by a 4-para essay is intro, conclusion, one body paragraph for one set of what people say, and second body paragraph of the second set of what people say. Right? And then intro and conclusion. Your opinion must come in both the intro and the conclusion. Is that point also clear? Yes, ma'am. Okay. Yes. So in the introduction, it is what some people say, what other people say, then what you say. Okay, you may write the line in this essay, I'll discuss both views. That also you may write. So let us see how this essay has been written. The introduction first. मैम ये essay number कौन सा है न्यू बुक में? ये न्यू बुक में नहीं है, ये 193 है. न्यू बुक अभी आनी है ये वाली. ठीक है मैम. Okay, so this is the introduction. Some parents believe that it is beneficial to be involved in the child's education, while others think that parental help with homework can end up hurting children. तो कुछ लोग ये कहते हैं, बाकी लोग वो कहते हैं. जो क्वेश्चन में था उसकी पैराफ्रेजिंग है. Is that clear? मैम. Yes, ma'am. हाँ, तो इसकी पैराफ्रेजिंग है. After that, you can write in this essay, I will discuss both perspectives. You may write, you may not write, it doesn't matter, but your view has to come. और वो जो आप यहाँ पे लिख देते हो in this essay, I'll discuss both perspectives. उसका ये फायदा है कि आप अगर आपने ये वाला लाइन और ये वाली लाइन ज्यादा अच्छी नहीं गई तो वो लाइन हेल्प कर जाएगी आपको. बट Idrup avoids writing that, and this essay has been written by him, तो मैं उसको ऐड नहीं करूंगी. I'll not be changing. एंड ये आप देख लो कि मैंने आपको समझा दिया है. वो लिखो नहीं लिखो डजंट मैटर, बट ऐसे का फॉर्मेट ये रहेगा. ठीक है? Okay, ma'am. First sentence is paraphrasing. Second sentence is your opinion. I believe that parents should support their child's learning, but should not be doing their homework for them. तो मेरा मानना है कि बच्चों को हेल्प करें पेरेंट्स, पर उनका होमवर्क ना पूरा कर दें खुद. मतलब ऐसी हेल्प नहीं चाहिए
कि बच्चा कुछ कर ही नहीं, पेरेंट्स ही कर रहे हैं सब कुछ। ठीक है, ये समझ आ गया आपको अपना व्यू? Yes, ma'am. नाउ फर्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, दैट शुड टेल द एग्जामिनर कि आप अपना व्यू नहीं दे रहे हो, उन लोगों का व्यू दे रहे हो जो कुछ कह रहे हैं। समझ गए? आप सीधा मत शुरू कर देना देयर आर मेनी एडवांटेजेस व्हाई चिल्ड्रन शुड नॉट बी हेल्प्ड। ये आपका व्यू हो जाएगा। आपको एग्जामिनर को बताना है कि आप किसी का व्यू दे रहे हो। आई एम म्यूटिंग यू ऑल, प्लीज अनम्यूट ओनली इफ यू हैव टू आस्क समथिंग। Sorry for that. Okay. On the one hand, there are many reasons why some parents believe that helping their children with homework is beneficial. Okay, why some parents believe. Samajh aa gaya? Yes, ma'am. On the one hand, there are many reasons why some parents believe that helping their children with homework is beneficial. Firstly, parents can expand upon the skills learned in school and get into more depth about the subject at home. Learning in school is very accelerated and teachers teach a lot of content in a small amount of time. Parental help with homework reinforces classroom material and helps children retain information better. तो जो पेरेंट्स है ना वो एक्सपैंड कर सकते हैं जो स्किल्स स्कूल में लर्न करी है, बिकॉज स्कूल में 40 मिनट्स के पीरियड में टीचर बहुत कुछ क्रैम्प अप कर देता है, एक्सेलरेटेड वे में टीच करता है और थोड़े समय में ज्यादा सिलेबस कवर करने की कोशिश की जाती है। तो पेरेंट्स जो है उसी चीज को और एक्सपैंड करके बच्चे को समझा सकते हैं। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट रीजन है। देन पेरेंटल, यही फर्स्ट रीजन को और एक्सपैंड करा हुआ है कि पेरेंटल हेल्प विद होमवर्क रीइंफोर्सेस क्लासरूम मटेरियल, तो क्लासरूम लर्निंग को रीइंफोर्स करता है। सेकेंडली, helping children with their homework provides parents the opportunity to see what their children are learning at school. अगर पेरेंट्स थोड़ा सा होमवर्क बच्चे का साथ देख लें तो उनको पता चलता है ना स्कूल में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, they know about their strengths and weaknesses and can communicate better with the teachers. तो वो अपने बच्चे की स्ट्रेंथ about their child's strengths and weaknesses and can communicate better with the teachers. तो टीचर्स के साथ बेटर कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये समझ आ गया इतना? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पैरे की फर्स्ट लाइन भी उतनी ही जरूरी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंटेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंटेंस डिस्कस ऐसे में ये आपको अच्छे से पिकअप करना है। ओके, ऑन दी अदर हैंड, नाउ ऑन दी अदर हैंड से कुछ क्लैरिटी हो रही है कि अब क्या आने वाला है? हाँ, सेकेंड सेट ऑफ पीपल का ओपिनियन आने वाला है। ऑन दी अदर हैंड, द मेन रीजन गिवन बाय दोज हु अपोज हेल्पिंग विद होमवर्क, जो मेन रीजन जो लोग देते हैं जो अपोज करते हैं होमवर्क में हेल्प करना, is that doing homework on their own teaches children to be responsible for their behavior. अब जो बच्चे अपने आप होमवर्क करते हैं ना, उन बच्चों को समझ आती है कि वो जो करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं एक तरह से। ठीक है, if parents are constantly reminding them about their homework, they get dependent on them and don't accept responsibility for their actions. अगर पेरेंट्स बार बार बच्चे को होमवर्क कर ले, ये कर, चल मैं हेल्प करता हूँ, तो वो फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं पेरेंट्स पे और अपने आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी एक्शंस की। ऑल्सो चिल्ड्रन नीड टू हैव दोज मोमेंट्स ऑफ स्ट्रगल एंड लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। दूसरी बात है, बच्चों को ना वो जो स्ट्रगल के मोमेंट्स होते हैं होमवर्क करने के, वो भी उनको लर्न करना है कि उनको कैसे मैनेज करना है, एंड स्ट्रेस जो होती है होमवर्क की उसको मैनेज करना भी बच्चों को सीखना है, और यही टाइम है बच्चों को सीखने का। इफ पेरेंट्स हेल्प विद एवरी ऑब्स्टिकल, अगर पेरेंट्स हर ऑब्स्टिकल में हेल्प करेंगे, दे डिप्राइव देम ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दिस एसेंशियल लाइफ स्किल। वो उनको इस अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव कर देते हैं, ये एसेंशियल लाइफ स्किल सीखने की अपॉर्चुनिटी से। Finally, helping children too much can make them feel incompetent and lower their self confidence. और बहुत ज्यादा हेल्प करना बच्चों को, उनसे वो बच्चे इनकॉम्पिटेंट फील करते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लोअर हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है।
फिर एक पैरा मैंने बनाया अपने व्यू का, क्योंकि मेरा व्यू बिल्कुल एक साथ के साथ नहीं जा रहा। मेरे व्यू में थोड़ा सा मैंने ये लिखा है कि हेल्प करना चाहिए, पर ओवरली हेल्प की पूरा होमवर्क खुद करो वो नहीं करना चाहिए। इसलिए आप देखो ये पैरा मैंने बनाया है। आई बिलीव दैट, ये पैरा कैसे शुरू हो रहा है? आई बिलीव दैट से। I believe that homework is students' responsibility and it is important for them to work independently. Parents should support and guide them if needed, but should never provide right answers or do homework for their children. They need to encourage hard work and effort and not just good grades. सिर्फ good grades नहीं encourage करने, hard work and effort को encourage करना चाहिए parents को. They can make sure that children are completing their homework before watching TV और प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स. बस पेरेंट्स का इतना रोल है कि वो ये देखें कि बच्चा होमवर्क कर रहा है पूरा कंप्लीट, खेलने जाने से पहले, टीवी देखने से पहले कि नहीं. ठीक है. इन कंक्लूजन, I believe that parents should set a limit on how much they can help with homework without robbing their children of the opportunity to learn for themselves. तो पेरेंट्स को ये लिमिट देखनी चाहिए कि कितना बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, जितना उसकी वो अपॉर्चुनिटी अपने आप सीखने की वो रॉब ना कर ले, वो उनसे छीन ना ले, उसको छीने बिना. ओके, नाउ दिस इज अ वेरी गुड डिस्कस ऐसे, जिसमें पूरा वैसे ही हैंडल किया हुआ है जो फॉर्मेट के हिसाब से है. आई होप यू ऑल फॉलोड इट एंड इससे कुछ सीखा है. नाउ वी विल गो टू अ सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन एसे टॉपिक. हाँ जी मैम, मुझे इसी ऐसे में एक डाउट है कि जैसे हमने स्टूडेंट्स लिखा है तो उसमें हमने एस के बाद अपोस्ट्रोफी यूज किया है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का, और चाइल्ड्स में हमने पहले का वो कैसे होता है? बहुत से स्टूडेंट्स का. ओके ओके, प्लूरल में स्टूडेंट्स का हमने अपोस्ट्रोफी दिया ना उनका. तो जैसे पेरेंट्स इट इज अ पेरेंट्स ड्यूटी. तो पेरेंट, एक पेरेंट की ड्यूटी है तो पेरेंट अपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा. अगर दोनों पेरेंट्स की ड्यूटी है तो पेरेंट्स एज ए प्लूरल, फिर बाद में अपोस्ट्रोफी आएगी और फिर एक और एस नहीं आएगा. ठीक है. और मैम चिल्ड्रंस में कैसे लेंगे? चिल्ड्रन तो वैसे ही प्लूरल है. अगर चिल्ड्रंस लिखते हैं तो एस. अपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा. वो तो वैसे ही प्लूरल वर्ड है. ओके, का या की अगर ठीक है आता है मैम, ना थैंक उसमें तो अपोस्ट्रोफी है. चिल्ड्रंस तो कोई विदाउट अपोस्ट्रोफी चिल्ड्रंस कोई वर्ड है ही नहीं. यू. वो तो चाइल्ड का प्लूरल है. ओके, सो दिस वाज अ डिस्कस ऐसे. यस मैम, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਐਂਡ ਆਈ ਆਲਸੋ ਬਲੀਵ. मैंने लिखा एंड आई आल्सो बिलीव. नहीं नहीं, एंड आई आल्सो बिलीव, एंड आई आल्सो बिलीव कहीं लिखा मैंने? मैंने आपको क्या बताया जब मैंने शुरू में फर्स्ट सेंटेंस बताया कि पहले ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रही हूँ. 4 पैरे बनाओ या 5 पैरे बनाओ, फर्स्ट लाइंस ऐसे ही रहेंगी. एंड आई मत कर देना प्लीज. ओके, वो तो आपने जब इंट्रो में अपना ओपिनियन लिख दिया कि मैं इस साइड के साथ हूँ, कंक्लूजन में लिख दिया, क्लियर नहीं हो गया? आपको फिर एक पैरे के साथ भी जोड़ना है कि एंड आई आल्सो बिलीव विद देम. ओके, और आपने लिखा था, मैंने आपको चेक करके बताया ऐसे नहीं लिखना. ओके, समझ गए ना? अब जो चीजें मैंने क्लैरिटी से बता दी उनको क्लैरिटी से समझ लो एंड कुछ एक्स्ट्रा मत करना, गड़बड़ हो जाएगी. ओके, ओके. इफ यू रिमेम्बर यू रिटन लाइक दैट. मैंने आपको बताया था कि ऐसे मत लिखना, इसमें नहीं आएगा. इफ यू रिमेम्बर दैट, आई डोंट नो, मैंने आपको बोला या हो सकता है मैंने किसी और को बोला हो. ठीक है. ओके, तो वी हैव डन डिस्कस ऐसे. नाउ वी गो टू द एग्री डिसएग्री ऐसे. ये लाइन किसने ड्रॉ करी है? Please now don't draw lines, whoever is doing it. Okay, some people think there is no need of professional photographers as they can click photographs themselves very easily. Do you agree or disagree? कुछ लोग कहते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद फोटोग्राफ्स खुद खींच सकते हैं बहुत आसानी से. डू यू एग्री और डिसएग्री? नाउ वी आर डूइंग द सेकंड सेट ऑफ एसेज. ब्रॉडली कितने टाइप्स ऑफ एसेज हैं? ब्रॉडली तीन तरह के एसे हैं ब्रॉडली. ओके, अब ये ध्यान से सुन रहे हो सब? फिर ये क्वेश्चन आएगा. आई एम टेलिंग यू, अभी ध्यान से सुन लो. ओके, सबसे पहला सेट है डिस्कस एसे, फिर है ओपिनियन ऐसे और तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्यूशन. ब्रॉड सेट 3 है. ओके,
at this. Look at my fingers. Broad sets कितने हैं? 3. 1, 2, 3. Discuss, opinion, problem solution. ठीक है? Is that much clear? Yes, ma'am. Okay. Now discuss ऐसे की further कोई subtype नहीं है. एक मिनट. Okay, ma'am. डिस्कस ऐसे की कोई फर्दर सब टाइप नहीं है. ओपिनियन ऐसे की 3 सब टाइप्स है. वो है एग्री डिसएग्री, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट और द एडवांटेजेस मोर देन द डिसएडवांटेजेस. ये इसकी सब टाइप्स है. बेसिकली हैंडलिंग सेम है. ओके. एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन में साथ में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी डाल देती हूँ. तो ये क्लियर हो गया. ब्रॉडली हमारे पास 3 है. एक हमने कर लिया, दूसरा हम करने जा रहे हैं ओपिनियन एसे. ओके. सो वी कम टू द ओपिनियन एसे. ओके. कुछ लोग कहते हैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की जरूरत नहीं है आजकल, क्योंकि खुद ही फोटोज खींची जा सकती है बहुत आसानी से. क्या आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? ठीक है. अब इस ऐसे में किसी भी एग्री डिसएग्री ऐसे में आप क्या कर सकते हो? आपके पास 2 मेन अप्रोचेस है. एग्री विद अ कंसेशन, डिसएग्री विद अ कंसेशन एक अप्रोच है. पर आप बेसिकली एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो. और दूसरी अप्रोच है स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री. ठीक है. अगर आपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है तो आप क्या करोगे? उसी चीज से एग्री भी करोगे और डिसएग्री भी करोगे. खाना स्वाद है, मैं एग्री करती हूँ और मैं डिसएग्री करती हूँ. स्वाद है पर नहीं स्वाद है. ऐसे हो सकता है? बताओ. आप एक ही चीज से एग्री कर सकते हो और डिसएग्री भी कर सकते हो? बताओ मुझे. नो, नहीं कर सकते ना. तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी है तो क्या करोगे? पार्शली एग्री. मैं एग्री भी करती हूँ, डिसएग्री भी. मैम मैं एक पैरा एग्री का बना दूंगी, एक डिसएग्री का बना दूंगी. काम आसान हो जाएगा. बैंड 5.5 रह जाएंगे. तो आपको ऐसे करना है? नहीं करना. एक ही चीज से आप एग्री नहीं कर सकते हो या डिसएग्री नहीं, मतलब एग्री भी और डिसएग्री भी नहीं कर सकते हो. ओके. आपको अल्टीमेटली आइदर एग्री करना है या डिसएग्री करना है. ठीक है. और वो जो एग्री डिसएग्री है वो 2 तरह से आप कर सकते हो. एक तो स्ट्रांगली एग्री कर सकते हो या डिसएग्री कर सकते हो. एक एग्री या डिसएग्री विद ए कंसेशन कर सकते हो. ठीक है. अब कंसेशन में आपको समझाऊंगी कैसे देना है. पार्शली एग्री, पार्शली डिसएग्री वर्ड मत यूज करना कभी भी. अभी फिर ये मुझे क्वेश्चन आएगा बाद में. ये इसके बाद मैम मैं पार्शली जा सकती हूँ. ये बहुत मेरे साथ बहुत होता है. अभी इतना क्लियर हो गया कि आप पार्शली का मतलब होता है एक ही चीज से आप एग्री भी कर रहे हो और डिसएग्री भी कर रहे हो. कैन यू डू लाइक दैट? नो. ओके. So either agree or disagree strongly or agree or disagree with a concession. Is that much clear? Yes, ma'am. Okay. अब क्या है कि जो agree और disagree with a concession होता है ना, उसमें हमने एक while sentence हम आपको सिखाएंगे. while sentence डालने से आपको बहुत easy हो जाता है. अब जैसे इस क्वेश्चन में आप लिखोगे कि जहां चाहे मैं खुद ले सकती हूँ फोटोग्राफ्स, मैं डिसएग्री करती हूँ कि प्रोफेशनल की जरूरत नहीं. अब मैंने कंसेशन दे दिया ना कि मैं ले सकती हूँ, पर मैं फिर भी डिसएग्री कर रही हूँ कि प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं है. मेरा मानना है कि उनकी फिर भी अपनी जरूरत है. तो मैंने क्या करा है? डिसएग्री. कंसेशन क्या दे दिया कि मैं खुद खींच सकती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है. समझ गए? हम कोई और एग्जांपल दे दो. और एग्जांपल्स आ जाएंगी जब और ऐसे आएंगे. पर यहाँ समझ आ गया? ये दिमाग में क्लैरिटी से घुस गया कि नहीं? नहीं मैम, इसी के बारे में और एग्जांपल इसी में एग्जांपल दे दिया ना. इसमें और क्या? टॉपिक चेंज करो और एग्जांपल. मतलब कि मुझे समझ, मतलब कि मैं बता रही हूँ, लोग खुद खींच सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं ना? नहीं आया दोबारा. हाँ. तो मैंने कह दिया कि जहां लोग खुद खींच सकते हैं, मैं डिसएग्री करती हूँ कि प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं है. ओके. समझ आ गया अब? यस मैम. तो मैंने क्या करा है? डिसएग्री. स्टेटमेंट कह रही है प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं है, मैंने क्या करा है? डिसएग्री. समझ गए? यस मैम. हाँ. तो इसमें अब क्या, अब मैं और एग्जांपल इसमें क्या दूं? पर मैंने साथ में कंसेशन क्या दे दिया है
कि मेरे पास ये वाला फोन है, उसमें बड़ी अच्छी फोटोज आ सकती है, मैं खुद खींच सकती हूँ, मैं खुद अच्छी फोटोज खींच सकती हूँ, पर मैं डिसएग्री कर रही हूँ कि प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं है। कंसेशन समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। है ना? मैंने ये तो नहीं बोला कि प्रोफेशनल की जरूरत है भी और प्रोफेशनल की जरूरत नहीं भी है, ऐसे बोला मैंने? पार्शली एग्री किया मैंने? नो मैम। नो। बस अब समझ आ गया आपको पॉइंट? यस अब मैं मैम। और एग्जांपल तो किसी और ऐसे के टॉपिक से दे सकती हूँ ना, इस ऐसे के टॉपिक की तो खत्म होगी बात। यस मैम। मैंने कंसेशन समझा दिया आपको, ठीक है? Yes, अब ma'am. देखो, ऑलमोस्ट अब इस ऐसे को अच्छे से करना है, बिकॉज हमने वन टाइप ऑफ ऐसे हर तरह का हमने अच्छे से करना है। और ये कितने पैरे का ऐसे बनाया मैंने? 4। हाँ, 4 पैरे का ऐसे बन सकता है। Almost everyone these days has a smartphone, and as each new model comes out, the camera gets better and better. ये तो मैंने एक लाइन डाली है, इसको नहीं भी डालोगे तो चलेगा, okay? These savvy smartphones have made some people believe that they have got what it takes to take a good photo and don't need professional photographers anymore. In my opinion, people may have the skills to take pictures for social media, but still need professional photographers in many situations. मेरे ओपिनियन में लोगों के पास स्किल्स चाहे है, पिक्चर्स ले सकते हैं, पर उनको फिर भी प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो मैंने क्या करा है, मैंने एग्री डिसएग्री वर्ड डाले बिना एग्जामिनर को समझा दिया कि मैं क्या कह रही हूँ, एग्री कर रही हूँ कि डिसएग्री कर रही हूँ। डिसएग्री विद कंसेशन। ठीक है। अब मैंने आपको वाइल सेंटेंस की बात करी थी, ये ऐसे में वाइल सेंटेंस नहीं लगा हुआ, इसमें लगा सकते हैं वाइल। ये देखो, while people may have the skills to take pictures for social media, comma, but नहीं आएगा, but while sentence में नहीं आता, अब ये भी नोट कर लो। Still, professional photographers are needed in many situations. लोगों के पास skills हैं to take pictures, okay, on their own भी कह सकते हो। Still, professional photographers are needed in many situations. अब ठीक है, while sentence समझ आ गया? while sentence में but नहीं आता, although sentence में but नहीं आता, यहाँ पे while की जगह although भी लग सकता है। To take pictures on their own, still professional photographs are needed in many situations. ठीक है, तो मैंने क्या करा है, एग्री करा है कि डिसएग्री करा है? क्वेश्चन कह रहा है there is no need of professional photographers, मैंने कहा है they are needed, तो मैंने क्या करा है, एग्री करा है कि डिसएग्री करा है? Disagree. Without using the word agree or disagree. Yes. अंडरस्टैंड हो गया क्लैरिटी से कि डिसएग्री करा है? Yes, ma'am. So this is a very good introduction. Okay, थोड़ा एक्सटेंड हो गया कि मैंने वो ये बता दिया कि क्यों ये लोग कहते हैं कि खुद फोटो खींची जा सकती है, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन में कैमरे बहुत हाई क्वालिटी के आ गए हैं। ठीक है, ओके। देन अब ये मेरा व्यू है, एग्री डिसएग्री ऐसे है, तो मुझे ये नहीं कहना व्हाई सम पीपल से दैट। ओके, ये आप समझ लो, व्हाई सम पीपल अदर पीपल वाला मैंने टॉपिक सेंटेंस नहीं बनाना है इसमें। वन सिचुएशन वेयर हायरिंग प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स मेक सेंस। अब मैंने बताना है कि कहाँ कहाँ हायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने डिसएग्री करा है कि उनकी नहीं जरूरत है, मैंने कहा उनकी जरूरत है, तो मैंने डिसएग्री करा है। तो मैंने डिसएग्री करके दोनों पैरे ये बना दिए हैं कि हायरिंग प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की जरूरत कहाँ कहाँ है। सबसे पहले पैरे को शुरू करा है, one situation where hiring professional photographer makes sense is for important milestones like weddings, anniversaries and birthday parties. अब important milestones है, weddings है, anniversaries है, birthday parties है, ठीक है, उनमें हमें प्रोफेशनल की अभी भी जरूरत है। It's important to capture these precious memories and having something to look back at years later. बहुत important है कि इन precious memories को हम कैप्चर करें और हमारे पास कुछ सालों के बाद वापस कुछ देखने के लिए अच्छा हो। Having a professional photographer do this job, अगर हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर को ये वाला काम करने के लिए हायर करेंगे
ensure करेगा that one gets time to enjoy such events without having to worry about juggling a camera and trying to get non blurry shots of all the party guests. अब पता है क्या, अगर मैंने प्रोफेशनल नहीं बुलाया, मैं घर में कोई पार्टी कर रही हूँ, मैंने प्रोफेशनल नहीं बुलाया और मैं चाहती हूँ कि सारी मूड्स कैप्चर हो, तो मैं गेस्ट्स को लुक आफ्टर करूंगी कि फोटोज खींचने में बिजी रहूंगी? बताओ मुझे। गेस्ट को लुक आफ्टर, तो फोटोज आएंगी फिर, अगर मैं फोटोज खींचूंगी तो गेस्ट की लुक आफ्टर कौन करेगा? तो प्रोफेशनल की जरूरत है कि नहीं है? है। तो मतलब बात समझ आ गई। A professional photographer is able to slip unnoticeably around the party and get the best candid shots. तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर क्या होता है, ऐसे घूमता रहता है ना पार्टी में, जहां उसको लगता है ये कैप्चर करने वाली फोटो है, फटाफट खड़े हो जाएगा। आप कुछ खा रहे हो पार्टी में, यस मैम, जब खा रहे हो आपकी तो फोटोज स्पेशली खींचते हैं ना फोटोग्राफर आके, ठीक है। In addition to that, photographers are experts. मैम हाँ, हम कैंडिड का मीनिंग बता दो। कैंडिड मीन्स जो अच्छे हैं शॉट्स, उसके लिए है टर्म। मैं बताती हूँ इसका मीनिंग। मैम कैंडिड मीन्स कि जो मतलब बिना बताए जो अचानक ये हो, बिना किसी का सामने मैंने खोल दिया मीनिंग। A candid photograph is one that is taken without the person in it knowing that they are being photographed. Yes. So he mingled among the guests and took the candid shots, which were much more fun than the formal group photographs. Candid shots, ठीक है? यस मैम। Okay. तो candid shot लेने में वो help कर देगा. Okay. Then in addition to that, photographers are experts at touching up the images, editing and removing any unwanted objects. तो वो बाद में touch up भी कर देते हैं, edit कर देते हैं, unwanted objects को remove कर देते हैं. अगला पैरा देखो. Professional photographers are also very important for businesses at high quality images, as high quality images add to the success of a business. तो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो बिजनेसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हाई क्वालिटी इमेज चाहिए टू ऐड टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस. Photographers know the way around lighting because sometimes it's not the camera but the lighting that makes all the difference. और photographers को lighting का भी पता होता है, इस तरफ खड़े हो इस तरफ better picture आएगी, इधर खड़े हो इधर better आएगी, बोलते हैं ना आपको. आपको ये बातें समझ होती हैं कि नहीं होती? मोस्टली नहीं होती, ठीक है. तो कैमरामैन जो फोटोग्राफर प्रोफेशनल है वो बताएगा, बिकॉज कई बार ना इट इज नॉट जस्ट अबाउट टेकिंग अ फोटो, इट इज अबाउट द लाइटिंग ऑल्सो, कि उसको देखना है. They have a lot of gear like lights, tripods, and are able to use skills like staging, lighting, positioning to highlight the best bits and make an ordinary product look spectacular. तो ordinary सी फोटो को भी बहुत spectacular look दे देते हैं professionals. For example, in real estate photography, it's important to highlight the interior and exterior, and a good professional photograph can make a property sell much faster. Anyone can learn all these skills, but it requires a lot of time and dedication, and that's why people still need professional photographers. फिर ये मैंने उसमें उस पैराग्राफ के भी एंड में कह दिया कि इसलिए, तो पहला मैंने पर्सनल उसमें कह दिया, दूसरा मैंने बिजनेसेस के वे में पैरा बना दिया, और मैंने ये रीइंफोर्स कर दिया कि मैं डिसएग्री करती हूँ कि प्रोफेशनल्स की जरूरत नहीं है. ठीक है मैम? हाँ जी मैम, जब हम एग्री और डिसएग्री ऐसे करते हैं, एक साइड ही जाना होता है, हम 2 पैराग्राफ बना सकते हैं, इनफ होते हैं वो? हाँ, ये बात मैंने सबसे पहले कही है. आप चाहे 4 पैराग्राफ कैसे बनाओ, चाहे 5 का बनाओ, ठीक है. अगर आपने वाइल सेंटेंस बनाया है और उसमें आप कंसेशन दे रहे हो, तो एक पैरा कंसेशन का भी बना सकते हो. पर इसमें कंसेशन का जो इसमें मैंने इसलिए नहीं बनाया, मैं आपको बताती हूँ. इसमें मेरे पास इसमें कंसेशन का जो कंसेशन की बात है, उसमें उसको एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक को पता है, एक 3 साल के बच्चे में सेलफोन के हाथ में सेलफोन दे दो, वो भी फोटो खींच लेता है. ठीक है. और इसमें क्या एक्सपैंड करेंगे, वही चीज बार बार लिखूंगी ना कि खुद फोटोज ली जा सकती हैं, कैमरे हैं, तो वही बात, वो तो मैंने लिख दी एक लाइन में. तो मैंने अपने 2 पैरास में डिसएग्री को सपोर्ट करा है, पर मैंने ये कंसेशन दिया है कि हाँ, खुद ले सकते हैं सब लोग फोटो, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर प्रोफेशनल्स की जरूरत है.
नहीं तो आप एक पैरा अपने व्यू का जो आपने वो दिया ना कंसेशन, उसका एक पैरा बना सकते हो. इज ठीक दैट है क्लियर? यस मैम ओके. सो हमने ना ब्रॉडली 3 तरह के ऐसे हैं, हमने 2 तरह के ऐसे टच कर दिए. एक तो हमने ओपिनियन टच कर दिया, एक हमने वो कर दिया. फिर ये डिस्कस ऐसे है, इसको मैं अब छोड़ रही हूँ. ये वाला ऐसे है डिस्कस, स्किपिंग इट. डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस? ये है. अब ये ऐसे है, इन सम कंपनीज पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस वर्क टुगेदर इन द सेम टीम. अब ये जो डू यू थिंक द एडवांटेजेस, ये कह रहा है कि कुछ कंपनीज में डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग एक ही टीम पे काम कर रहे हैं, एक ही टीम बना के काम कर रहे हैं, एक ही टीम में काम कर रहे हैं. तो क्या इसके फायदे नुकसानों से ज्यादा हैं? अब ये कौन सी टाइप, ब्रॉड टाइप ऑफ ऐसे की सब टाइप है? Opinion essay. Opinion. Very good. ओपिनियन Yes, this is an opinion essay. They are asking you your opinion. और एक opinion होता है, is this a positive or a negative development? अब इसी ऐसे में जो ये लाइन है कि people different ages के work together कर रहे हैं, और नीचे do you think advantages outweigh disadvantage की जगह लिखा होता है is this a positive or a negative development? तो ये दोनों ऐसे एक तरह से वही है, पर दोनों में क्या फर्क है? एक ही फर्क रह गया दोनों में, और वो फर्क है कि इज दिस ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट. में आप कह सकते हो इट इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, और कोई भी नेगेटिव का पॉइंट नहीं डालो, चलेगा, वन साइडेड जा सकते हो आप. पर डू यू थिंक एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, ऐसे आपसे पूछ रहा है कि क्या इस चीज के फायदे नुकसानों से ज्यादा है. अगर आप लिखते हो फायदे नुकसानों से ज्यादा है, तो भी आपको फायदे और नुकसान दोनों लिखने हैं, पर फायदे ज्यादा लिखने हैं. अगर आप लिखते हो नुकसान फायदों से ज्यादा है, तो भी आपको दोनों लिखने हैं, पर नुकसान ज्यादा लिखने हैं. ये बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई आपको? यस मैम. तो बस ये आपके एक तरह से सारे ओपिनियन ऐसे डिस्कस हो गए. एक एग्री डिसएग्री हो गया, और इन दोनों का एग्री डिसएग्री में भी आप वन साइडेड जा सकते हो. सिर्फ यही फर्क है कि डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस में आपको दोनों, आप वन साइडेड जाने का स्कोप नहीं है आपके पास. इफ दैट इज क्लियर, यू आर डन विद द ओपिनियन एसेस. Is that much clear now? अच्छे से? यस मैम. अब डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे है, इसको पूरा पढ़ते हैं. Okay. Some workplaces are composed of diverse age demographics and mixed age work teams are becoming increasingly common. अब कई वर्कप्लेसेस, डेमोग्राफिक्स क्या होती है? What is demography? जनसंख्या. The study of population. जनसंख्या तो वो हो जाएगी ना, पॉपुलेशन का कितनी है. The study of population. उसमें स्टडी में ये भी आ जाता है मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितनी है. उस स्टडी में ये भी आ जाता है कि यंग पीपल कितने हैं, ओल्ड पीपल कितने हैं. उसको डेमोग्राफी कहते हैं. और किसी ऑफिस में यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, तो वो होगी ऑफिस डेमोग्राफी. समझ गए? तो उस वर्क प्लेस की डेमोग्राफी. तो सम वर्क प्लेसेस आर कंपोज्ड ऑफ डाइवर्स एज डेमोग्राफी. डाइवर्स होती है भिन्न, विभिन्न. ठीक है? तो कुछ वर्क प्लेसेस जो है वो डाइवर्स एज डेमोग्राफिक्स कंपोज होते हैं, उनमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं. एंड मिक्स्ड एज वर्क टीम्स. मिक्स्ड एज वर्क टीम्स है जिसी उसी वर्क टीम में एक 60 साल का बंदा है, उसी में एक 22 साल का बंदा काम कर रहा है. तो ये मिक्स्ड एज वर्क टीम्स है, ये बहुत कॉमन होती जा रही है. Although there are a few drawbacks of age diversity in companies, I believe the advantages certainly outweigh them. Although there are a few drawbacks of this trend, I believe the advantages certainly outweigh them. अब मैंने 2 सेंटेंस बोले हैं. पहला सेंटेंस देखो, मेरे दोनों सेंटेंस सुनो. एक तो जो आपके सामने लिखा हुआ है, although there are a few drawbacks of age diversity in companies, I believe the advantages certainly outweigh them. और दूसरा है, although there are a few drawbacks of this trend, I believe the advantages certainly outweigh them. दोनों में आधे बैंड का फर्क है. दोनों करेक्ट है. जो मैंने बाद में बोला है, although there are few drawbacks of this trend, I believe the advantages certainly outweigh them. ये वाला सेंटेंस आप किसी भी ऐसे में इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो.
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाले में। Yes, ma'am. और ये वाला जो है, although there are a few drawbacks of age diversity in companies, I believe the advantages certainly outweigh them. No, ma'am. इसको सिर्फ इसी ऐसे में डाल सकते हो। बस अगर आप ये इतनी सी चीज पहचान लो कि जो आप किसी ऐसे के लिए स्पेसिफाई कर दोगे, तो आपकी इंट्रोडक्शन, अगर आपका पूरा ऐसे 7 पे है तो ऐसी इंट्रोडक्शन उसको 7.5 पे ले जाएगी। ओके और अगर आप वो वाला ये सिंपल लिखते हो दिस ट्रेंड, तो अगर आपने बाकी ऐसे बहुत अच्छा लगा है 7 फिर भी आ जाएंगे। पर ऐसे लिखना, ये चेंज करना आधा बैंड ऊपर ले जाती है किसी भी चीज को। ये समझ आ गई बात आपको? Yes, ma'am. तो ये आपको, although there are a few advantages, a few drawbacks of this trend की जगह age diversity in companies, ठीक है, तो the advantages are certainly much more। ऐसे लिखोगे तो उसका ज्यादा एडवांटेज मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आप पहले पैरे की फर्स्ट लाइन देखो, there are many benefits of people of different ages working together in the same team। फिर on the one hand कर दो, ये मैंने पता है क्या करा है, मैंने जो 2 बेनिफिट्स के पैरे है ना वो इकट्ठे लिखे हैं, वो उससे शुरू कर दिया। पर आजकल हम क्या कह रहे हैं कि एडमिटेडली करके जो जिसके कम पॉइंट्स है उस पैरे को पहले लिख दो, फिर हाउएवर करके 2 पैरे ये बना दो, बट उसमें कोई फर्क नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। ऑन द वन हैंड देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस वर्किंग टुगेदर इन द सेम टीम। फिर मोर ओवर, अगला पैरा मैंने शुरू करा मोर ओवर से। इससे क्या पता चलता है मोर ओवर से? हेलो, एडवांटेजेस कंटिन्यू हो रहे हैं, एडवांटेजेस कंटिन्यू हो रहे हैं। फिर ऑन दी अदर हैंड इससे क्या पता चलता है? अब डिसएडवांटेजेस का पैरा आ रहा है, ठीक है। तो जो दूसरा मेथड मैं बता रही हूँ, ये वाला पैरा पहले लिखो और इसको ऑन दी वन हैंड कर दो और इसको ऑन दी अदर हैंड कर दो बाद में, या फिर इसको एडमिटेडली कर दो यहाँ पे और इसको हाउएवर कर दो, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है बहुत डिस्टरबेंस थी, पर आपको ये बात समझ आ गई जो मैंने बोली अभी तक? यस मैम। यस मैम। ओके, तो ये जो पॉइंट्स आप पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएंगे कि इसमें मैंने लिखे हैं फायदे अगर डिफरेंट एज के लोग इकट्ठे काम करते हैं, फिर मैंने और फायदे लिखे हैं, और फिर मैंने नुकसान लिखे हैं। मैं अब वन साइडेड नहीं जा सकती हूँ, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे में मुझे दोनों लिखने हैं और मैंने दोनों चीजें लिखी हैं। इज दैट क्लियर? मैम यस। मैम ऐसा भी हो सकता है ना कि डिसएडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस? हाँ, उसमें क्या है, ऐसा ऐसे भी हो सकता है, वो तो मैंने पहले बोला है। ठीक है मैम। हाँ, जो चीज आप Okay. ज्यादा लिखना चाहते हो वो ज्यादा लिखो, ठीक है। हाँ मैम आपने जैसे बताया कि डिसएडवांटेजेस पहले भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं ना हम हाँ डिसएडवांटेज बिल्कुल, पहले मैं और वही बाकी तो के बता रही हूँ एडवांटेजेस कि बाद में। ऑन द वन हैंड देयर आर ए फ्यू डिसएडवांटेजेस करके पहले डिसएडवांटेजेस लिख दो, फिर ऑन द अदर हैंड द एडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस हैं 2 पैरे एडवांटेजेस के बाद में बना दो। उसमें कोई, वो बच्चे पूछते हैं मैम पहले क्या लिखना पीछे, इसलिए बता रही हूँ। और वो भी मैंने ऑन द वन हैंड ऑन द अदर हैंड से एक और ऑप्शन है एडमिटेडली और हाउएवर, वो भी कर सकते हो। एडमिटेडली देयर आर ए फ्यू डिसएडवांटेजेस of age diversity in the workplace, फिर पहले disadvantages डाल दो, however the advantages certainly outweigh them, और फिर वो advantages डाल दो। there are many advantages, there are far more advantages करके advantages के बाद में पहले बना दो, ठीक है। ये देखो, some people believe that technology has destroyed social interaction, do you agree disagree हम कर चुके हैं। ये देखो, ये do you agree or disagree ये कर चुके हैं। ये देखो, डू यू थिंक इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, ये आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैंने ये आपको बताया था कि इसमें और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में क्या फर्क है? मैम वन साइडेड जा सकते हैं। हाँ, इसमें वन साइडेड जा सकते हो, उसमें नहीं जा सकते, ठीक है। इसमें क्या है कि आप हेलो, लिखा है कि कुछ लोग ना बहुत यंग एज पे बहुत फेमस हो जाते हैं, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? मैंने ये इसको स्ट्रांगली क्या कहा है, मैंने इट इज ए नेगेटिव डेवलपमेंट करा है, ठीक है। और चाइल्ड स्टार, ये चाइल्ड स्टार्स होने के नेगेटिव डेवलपमेंट वाले, मैंने तीनों पैराज में नेगेटिव डेवलपमेंट बोली है, और मैंने तीनों पैराज में अपना वन साइडेड ऐसे को सपोर्ट करा है, ठीक है। और मैंने कोई भी फायदा नहीं डाला।
अगर मैं स्ट्रांगली नेगेटिव डेवलपमेंट लिख के अंदर फायदे वाला एक पैरा बनाऊंगी तो मेरा ऐसे सही रहेगा कि गलत हो जाएगा? गलत। मैम हाँ, ये बात समझ आ गई ना? अगर मेरे को नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला एक पैरा बनाना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, while there are a few positives of becoming a child star, overall the negatives are far more. फिर मैं एक पैरा पॉजिटिव का और दो पैरे नेगेटिव के बना सकती हूँ। ये समझ आ गई आपको बात? यस मैम। पॉजिटिव में फिर आप डाल सकते हो कि बहुत पैसा कमा लेते हैं यंग एज पे, सारी उम्र उनको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। पेरेंट्स को भी सपोर्ट हो जाती है, उनके घर की सिचुएशन बदल जाती है। आप देखते ही हो ये जो बच्चे डांस में या म्यूजिक में, छोटे छोटे बच्चे पुअर फैमिलीज के हैं, वो उनके घर के हालात कैसे बदल गए ओवरनाइट, है ना? और ये फायदे लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखे क्योंकि मेरे को सारे नुकसान ही दिखते थे, तो मैंने सारे नुकसान डाल दिए। आप जैसे मर्जी अपने ऐसे को हैंडल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो आप इंट्रोडक्शन में लिखो माइक्रोफोन इज अनम्यूटेड। क्या मैम हेलो। हाँ मैम आप एंड में पीडीएफ प्रोवाइड कर दोगे? हाँ, ये पीडीएफ जितने ऐसे आज कराऊंगी सबकी पीडीएफ प्रोवाइड करो। ओके मैम। वैसे आप बुक्स ले लो ये वाले, क्योंकि लास्ट ऐसे मेरी बुक में है नहीं, ये मैंने अभी अभी ऐड करे हैं जो पास्ट में आए हैं, तो मैं ये पीडीएफ जरूर प्रोवाइड कर दूंगी लास्ट एसेस की, जीटी बुक की, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया। मैंने तीनों पैरास में 3 नेगेटिव पॉइंट्स डाले हैं। सबसे पहले मैंने ये लिख दिया है कि जो ऐसे बच्चे होते हैं जो चाइल्ड स्टार बन जाते हैं, उनके पेरेंट्स लालच में आ जाते हैं और वो बच्चों का चाइल्डहुड ही उनसे छीन लेते हैं, उनको और पुश करते रहते हैं, स्कूल भी मिस करा देते हैं। तो ये गलत हो गया ना? इज दिस अ गुड पॉइंट? ये अच्छा पॉइंट है ना बताने के लिए? और पेरेंट्स ऐसे करते हैं, एकदम बहुत पैसा दिखने लग जाता है, कहते हैं स्कूल भेजने का क्या फायदा, पालेगा, इसको लेके जाते हैं काम करने, ठीक है? अनदर बिग डिसएडवांटेज है कि ये बच्चे ना फेम को एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको लत लग जाती है फेम की। दे फाइंड, मतलब अगर जब उनकी वो फेम का फेज ओवर होता है तो फिर वो उसके वो विड्रॉल सिम्टम्स चल जाते हैं। आपको पता है जिनको ड्रग्स की लत लग जाती है, ड्रग्स के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, उनको जब नहीं लेते तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं ड्रग्स के, पता है ना आपको? ऐसे ही बच्चों को फेम के विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है? ये पैरा बना दिया, फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए। फिर मैंने फाइनली ऐसे बच्चों को ना नॉर्मल चाइल्डहुड नहीं मिलता, ना वो आम बच्चों से मिक्सअप हो सकते हैं, और इनको जेलसी फेस करनी पड़ती है अपने पीयर्स की, और बाकी जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनसे भी इनको जेलसी फेस करनी पड़ती है, इनको एंजाइटी अटैक्स हो जाते हैं। कुछ बच्चे बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, एरोगेंट मीन्स अपने आप को बहुत समझने लग सकते हैं, सेल्फ इम्पोर्टेंट समझने लग जाते हैं, उनके ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते और हमेशा उनकी लाइफ लोनली रहती हैं। तो मैंने ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स डाल दिए हैं। ये समझ आ गए आपको सारे नेगेटिव पॉइंट्स? यस मैम। अगर आप वाइल सेंटेंस बनाते हो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि एक पैरे में फायदे डाल दो और फिर 2 पैरास में ये वाले 3 जो नुकसान डाले हैं ये 2 पैरास में सम अप कर दो। ये समझ आ गया आपको हाउ टू हैंडल अ पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट? यस मैम। ओके, सो आज हमने डिस्कस करा है, एक डिस्कस कर लिया। आपको डिस्कस से फॉर्मेट समझ आ गया? यस मैम। आपको एग्री डिसएग्री का फॉर्मेट समझ आ गया? यस मैम। ओके, आपको पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट का फॉर्मेट समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, आपको डू यू थिंक द एडवांटेजेस आर मोर देन द डिसएडवांटेजेस का फॉर्मेट समझ आ गया? यस मैम, सभी क्लियर है मैम अभी? हैं, सभी क्लियर है। अब एक रह गया हमारा लास्ट, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे या डायरेक्ट क्वेश्चन एसे। ये अब अगला ऐसे ही वो आ गया। Many parents are unhappy with the amount of violence in video games, TV programs and other such leisure activities. बहुत पेरेंट्स कहते हैं ये वीडियो गेम्स में, टीवी प्रोग्राम्स में और ऐसी लेजर एक्टिविटीज में बड़ी वायलेंस है। इस वायलेंस के बच्चों को क्या नुकसान हो सकते हैं एंड इससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा सकता है? अब किसी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में नाउ एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, ये एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन सेम है, आप ये बात समझ लो, इनमें कोई फर्क नहीं है। अब आप किसी भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में 3 चीजें पूछी जाती हैं। कैन यू सी मी? यस मैम। कॉजेस, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस, ठीक है? 3 चीजें होती हैं, इनमें से कोई 2 पूछी जाती हैं, या कॉजेस और इफेक्ट्स
या कॉजेज और सॉल्यूशंस या इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस? समझ आ गई? Yes, ma'am. So out of the three things, any two may be asked. Rarely all three are asked. Is that clear? Yes, ma'am. Okay. अब इस ऐसे में मुझे बताओ कौन सी दो चीजें पूछी गई हैं उन तीनों में से? मैम कॉजेस, मैम इफेक्ट और सॉल्यूशन पूछा। कॉजेज किसने बोला? उन्होंने भी बोला है, उनको ये बात सीखने को मिल गई आज। मैं तो ये कहती हूँ जितनी मिस्टेक्स करो उतना ज्यादा सीखो और उतना अच्छे से सीखो। जिन्होंने ये बोला है कि इसमें कॉजेज पूछे गए हैं, उन्होंने अपने आप को, अगर उनको एग्जाम में प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे आ गया तो उन्होंने अपने आप को 5:30 जाने से रोक लिया। अगर आज ये बात सीख ली कि जल्दी जल्दी एकदम कॉजेज नहीं बोल देना, ऐसे को पढ़ना है और समझना है हिंदी पंजाबी करके। देखना है कि क्या कारण मांगे, क्यों वॉयलेंस दिखाई जा रही है, मांगे है कारण? नो मैम। तो अगर आपने कारण लिख दिए तो ऐसे तो 5 5:30 पे रह जाएगा ना एग्जाम में। यस मैम। हाँ, तो बड़ा अच्छी बात है आपने ये बोला कि कारण मांगे हैं और मुझे ये समझाने का मौका दे दिया कि आपको कारण नहीं मांगे हैं, इफेक्ट्स मांगे हैं और सॉल्यूशंस मांगे हैं। ठीक है मैम। ठीक है, तो ये कोई नेगेटिव नहीं होता अगर आपने कोई चीज नहीं समझी या गलत बोल दी। गलतियां यहाँ करो, दिस इज द प्लेटफॉर्म टू डू मिस्टेक्स। यस। The more mistakes you do here, the fewer mistakes you will do in the actual IELTS exam. That is what will fetch you good bad score. ठीक है? Yes. Yes. So, that is it. अब यहाँ पे इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस मांगे हैं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे में 3 चीजें होती हैं, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। आउट ऑफ दोज 3 any 2 are asked generally, rarely all 3 are asked. अगर तीनों पूछी जाए फिर तो आपका 5 पैरा ऐसे बन गया, कॉजेज का 1 बना दो, इफेक्ट्स का 1 बना दो, सॉल्यूशंस का 1 बना दो। पर तीनों ज्यादातर पूछी नहीं जाती, 2 पूछी जाती हैं। तो 2 पूछी जाती हैं तो उनमें आपका 4 पैरे का ऐसे बड़ा अच्छा बन जाएगा। एक में कॉजेज, एक में सॉल्यूशंस, या एक में इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस, एक में सॉल्यूशंस, और या फिर एक में कॉजेज और एक में इफेक्ट्स। यही 2 पूछी जाती है ना, तो आप 4 पैरे का ऐसे भी बना सकते हो। पर सपोजिंग आपके पास कॉजेज बहुत ज्यादा है तो आप 2 पैरे कॉजेज के बना दो, 1 सॉल्यूशंस का, वो भी चलेगा। सपोजिंग आपके पास सॉल्यूशंस बहुत ज्यादा है तो आप 1 पैरा कॉजेज का 2 सॉल्यूशंस के बना दो, वो भी चलेगा। ठीक है, सो इट डजंट मैटर, 4 पैरा और 5 पैरा डजंट मैटर। सिर्फ अपनी इंट्रो कंक्लूजन में जो आपने लिखा है उस वे से हैंडल करना, और ये देख लेना कि कॉजेज मांगे हैं कि नहीं मांगे हैं, क्या मांगा है वो लिखना है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. So many parents are unhappy with the amount of violence in the TV, video games and other such leisure activities. इसके क्या नुकसान हो सकते हैं बच्चों पे और क्या किया जा सकता है टू सॉल्व। अब इसको हैंडल करने का तरीका देख लो। ओके, in recent years, a lot of parents have raised their voice against the amount of violence being portrayed on the TV, electronic games, and even other leisure activities. I believe that this can have considerable detrimental impact on children. तो मैंने इफेक्ट ही लिखा ना कि considerable हो सकता है। However, various measures can be implemented to curtail their effect. अब मेरे को ये बताओ, मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि मैं इस एसे में क्या डालने वाली हूँ। मेरे इंट्रोडक्शन से पता चल रहा है कि एसे में क्या आएगा आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is a 7 band plus introduction. ठीक है, यही डायरेक्ट क्वेश्चन में आपने करना है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका लिख दो कि मैं ये आगे बताने वाली हूँ, तो आपका 7 बैंड प्लस इंट्रोडक्शन हो जाएगी। फिर एक पैरे में एडवर्स इफेक्ट लिखा है, फर्दर मोर डाला है, तो इसका मतलब इस पैरे में क्या आ रहे हैं, वही एडवर्स है। और फिर इसमें मैंने सॉल्यूशंस डाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, बोथ द अथॉरिटीज एंड पेरेंट्स कैन टेक सर्टेन स्टेप्स टू एड्रेस दिस। तो मैंने इससे पढ़ के पता चल रहा है कि सॉल्यूशंस आ रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशंस पैराग्राफ। तो ये है आज की क्लास, टाइम हो गया, and I hope I have touched all the types of essays with you nicely, and now you can attempt them if you get any essay in the IELTS.
दिस विल बी ए कलेक्टेबल क्लास, क्योंकि ये मैं कलेक्टेबल क्लासेस के वीडियोस में कर रही हूँ, क्योंकि हर ऐसे को एक एक टाइप मैंने कर दिया और बीच में कुछ क्वेश्चंस आ गए जो बच्चों को आइडिया दे रहे हैं, एंड इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू नो कितने टाइप के ऐसे आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, and by taking one example of each type, I hope I have been able to convey that this is it, this is about the IELTS essay. तो आपको किसी को ये वाली क्लास पूरी अटेंड करने के बाद अभी भी मन में कोई डाउट्स हैं तो पूछ सकते हैं। चलो ओके। मैम हाँ जी, क्लास होगी कल ना एक्चुअली मैं ना अपने कुछ पुराने वीडियोस डाल दूंगी जिसमें मैंने जॉब एसेस कराए हुए हैं, सारे जॉब एसेस डिस्कस हो डाल गए देना। हैं। मैप की मैम नहीं, मैं अब कल क्लास नहीं ले रही हूँ, तो मैं मैप की क्लास की भी वीडियोस शेयर कर दूंगी और आप वो देखो बैठ के ओवर द वीकेंड, एंड देन मंडे को अब क्लास होगी, ठीक है? ओके मैम। चलो ओके, सी यू ऑन मंडे नाउ। Bye, ma'am. बाय। Thank you, ma'am. Bye.